Mohit, let's proceed ahead with your mock for Satara Bombay. Please tell your academic background, Mohit. I did my graduation in physics from Ramdas College and post graduation in physics only from Department of Physics and Astrophysics. I secured a CGPA of 8.459 in my graduation and around 61.6% in my post graduation. Okay. So as a physics student from Ramjas College of prestigious Delhi University, why you want to join Satara department? It is a rural technology department. Yeah, so basically, I always wanted to contribute my skills and my mathematical and computation skills for the development of rural areas. And basically, sir, I have visited a rural village called Kalram in my summer vacation. So I have noticed that they are facing many problems like power outages and farming issues are also there, which can be solved using knowledge of scientific technology. So as a physicist, how can you solve those problems? Basically, sir, we can develop technology. Basically, sir, I have done specialization from electronics department. So, sir, using the knowledge of my electronics, we can work on solar devices, which can bring down the cost of like irrigation for farmers, and it is also possible that there is like a cost of ownership is very high. It is basically use of it is basically due to they don't have any equipment and any facilities for storage of those onions. So if we are able to build up some if we are able to build up using technology that stores the onions for I think 3-4 days, then we will able to maximize profit for them. How shall you do that? So you want to create cold storage, right? Yes, sir. You want to create cold storage. Yes, sir. So how as a physicist you will do that? So basically I am not aiming to develop a proper cold storage like it actually costs very high. I just want to bring down the temperature by 10-20 degrees Celsius. Okay. Which can easily be done using evaporation technique. Basically if we I think I don't have actually I can share that's a proper model for this. Basically, if we store the onions and in a basically storage device made up of some equipment made up of some equipment which are developed in IIT Bombay using semiconductor technology. And then if we use proper supply of water and using that we can when the water evaporates this technology is based on the principle that when water evaporates that it lowers down the temperature of the devices in which the onions are stored, yeah, or other farmers materials. So that is the basic principle behind the device. Okay. So do you know productivity in agriculture sector is very less? Yes, sir. तो आप ऐसे सेक्टर में क्यों जाना चाहते हैं जहां पे प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, प्रॉफिट नहीं है? सर बेसिकली इसका रीजन ये है कि सर मैंने देखा है कि जो इसका पोटेंशियल है एग्रीकल्चर का वो काफी ज्यादा है। तो मैंने फार्मर्स के मेथड्स को एनालाइज किया। बेसिकली सर उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि किस टाइम पे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उनका जो रेगुलर अपडेट्स रहते हैं उनके पास उनको नॉलेज नहीं है कि किस टाइम पे कितनी mm ऑफ रेनफॉल होने वाली है। तो ताकि वो अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज कर सके और अपना प्रॉपर बेनिफिट ले सके। तो सर इस नॉलेज तो मैंने नोटिस किया है कि मैंने नोटिस किया है कि फार्मर्स की इनकम्स को इंक्रीज करने में पोटेंशियल काफी हाई है इस डिपार्टमेंट में। जैसे पोटेंशियल को देखते हुए मैंने इसमें चूज किया है कि मैं इस डिपार्टमेंट में जाऊँ। ओके। So in this, can you tell me, Mohit, in this your research proposal, this objective statement of objective, what do you propose? What would you like to do? Have you mentioned something what you would like to do in Satara department? No, sir, I have not mentioned. Yes, sir, actually, ये जो proposal है
मैंने चेंज किया था बाद में सर। तो सर इसमें मैंने मॉडिफिकेशन किया था इन प्रोफेसर्स का जो प्रोजेक्ट है ना, तो सर उसमें बेसिकली सर मैंने एक प्रोजेक्ट मेंशन किया था कि उसमें जो केरला में जो फ्लड्स आई थी अभी, हम्म उस पे एक प्रोफेसर रिसर्च पेपर था, उसमें मैंने स्टडी किया था कि जो कंटिन्यूस फ्लड्स आ रहे हैं वो बेसिकली सोइल इरोजन की वजह से है। हम्म क्योंकि जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट का भी उसमें मेंशन था कि उसका जो सोइल इरोजन रेट है वो 220% बढ़ गया है प्रीवियस ईयर से। तो हम्म सर अगर हम फोरकास्ट करें नेक्स्ट 2 इयर्स का, तो उसके चांसेस और भी बहुत ज्यादा है कुछ डिस्ट्रिक्ट में सोइल इरोजन होने के या फ्लड्स आने के। तो सर मैं उस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ। तो उसमें करेंगे क्या आप? सर बेसिकली हम उसमें जो सोइल हेल्थ कार्ड होता है बेसिकली जो सर गवर्नमेंट रिलीज करती है, तो सर हम्म उसमें मैंने देखा है कि काफी जो उसको एनालाइज जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है उसको कार्ड डिटरमाइन करने का, सोइल को एनालाइज करने का, उसमें कुछ लूप होल्स हैं। हम्म तो सर मैं जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके बेस पे उन लूप होल्स को रिमूव करके जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को एफिशिएंट बनाने का ट्राई करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं आपसे मोहित ये पूछ रहा हूँ कि आप एज अ फिजिक्स ग्रेजुएट, यू हैव एंटायर अपॉर्चुनिटीज इन योर ओन फील्ड आल्सो। आप फिजिक्स की फील्ड छोड़ के रूरल टेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या करोगे और क्यों आना चाहते हो, इसका आंसर बताओ। यस सर बेसिकली सर मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे फिजिक्स की नॉलेज है उसमें मैं किसी गवर्नमेंट के जो, क्योंकि सर हमारे इंडिया के 80% जो पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, तो सर मैं चाहता हूँ कि जो मेरी फिजिक्स की नॉलेज है किसी के डेवलपमेंट में बेनिफिशियल हो, rather देन मैं किसी जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे हाई एनर्जी फिजिक्स है उसमें सर वो हाई लेवल स्केल के प्रोजेक्ट्स है, उसमें किस जो हमारी कंट्री प्रॉब्लम फेस कर रही है फार्मिंग से रिलेटेड या वाटर से रिलेटेड, वो उसमें सोल्व करने में हेल्पफुल नहीं होंगे वो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब मैंने पूरी नॉलेज गेन की है, मेरा पूरा मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, कंप्यूटेशन बैकग्राउंड है, तो उसकी पूरी नॉलेज को मैं जो रूरल बैकग्राउंड में जो पीपल सफर कर रहे हैं, जैसे कि वाटर प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं, इरिगेशन की कॉस्ट काफी हाई है, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम लोग वो फेस कर रहे हैं, या जो कोल्ड स्टोरेज की प्रॉब्लम है उसमें भी लोग काफी फेस कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि जो जो ये प्रॉब्लम्स, एक तो सब वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक जिसके ऊपर एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है, तो उनको तो हमें सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन जो मैंने प्रॉब्लम देखा है कि जो लोग फेस कर रहे हैं उसको एक टेक्नोलॉजी राइट माइंडसेट, अगर किसी का टेक्नोलॉजी माइंडसेट हो तो सर उसको अप्लाई करके उनकी जो प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। ओके उसमें से बजट की ओके रिक्वायरमेंट बहुत हाई नहीं है। ओके, ओवर टू यू ज्योति। So, any particular subject which you have studied in your graduation or post graduation that can be useful for you in this department? इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने वो स्टडी किया है, स्पेशलाइजेशन किया है, तो सर हम उसमें हम यूज कर सकते हैं इसे। इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन से पार्ट सपोज मतलब कैसे यूज हो सकता है वो रूरल एरिया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, कोई स्पेसिफिक आइडिया? यस मैम, बेसिकली जो मैंने सोलर प्रोजेक्ट्स मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने स्टडी किया था ग्रेजुएशन के अंदर, वो यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि आगे वो उनके अगर हम लो कॉस्ट सोलर पावर बनाते हैं तो वो काफी बेनिफिशियल हो गए रूरल पीपल के लिए। उससे बेसिकली जो इरिगेशन की कॉस्ट है वो भी काफी कम कर सकते हैं, या फिर जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनमें बनाने में जो सेमीकंडक्टर नॉलेज है मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो भी हेल्पफुल हो सकती है। बेसिकली जो कंडेंस जो डिवाइसेस बनती हैं उनको अगर हम लो कॉस्ट डिवाइसेस बनाना चाहें, जो अभी लेटेस्ट कंडेंस मैटर में टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो उनके हेल्प से हम बना सकते हैं उनको। Okay. Have you done any project related to this or any experiments related to this? No, ma'am. Solar सोलर से रिलेटेड मैंने एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया था मैंने अभी, कोई प्रोजेक्ट नहीं था। प्रोजेक्ट मैंने बूटस्ट्रैप पे किया था, बूटस्ट्रैपिंग के ऊपर, जो बेसिकली हमारा जो रैंप वोल्टेज जनरेटर होता है उसकी जो स्लोप है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम बूटस्ट्रैपिंग यूज करते हैं, तो उसको किया था। Okay, so maybe we can come out of this presentation now and we can give him feedback. Okay, Mohit, you see, from your interview, it is not looking like that you have done groundwork why you want to join Satara. You got a call, but you have no idea what you want to do in Satara. Right? Rural technology में क्या करोगे as physicist आपको पता नहीं है उसका. I give you some blueprints what to do. Just visit the website of Satara and see is there any professor from your field, physics, who is working in Satara. यस सर, आई हैव, जो मैंने एसओपी में एक प्रोफेसर का नाम मेंशन किया था, तो सर वो वर्क कर रहे हैं, फिजिक्स डिपार्टमेंट से ही हैं,
तो जो केरला फ्लड से वर्क कर रहे हैं वो मैंने उनको देखा था। हाँ, जो IoT का यूज कर रहे हैं। यस सर, वो GIS टेक्नोलॉजी है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो। आप अवेयर हैं उसके GIS टेक्नोलॉजी वगैरह के ऊपर? नहीं सर, मैंने अभी वैसे अभी मैं टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत स्टडी किया है, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन में वर्क तो नहीं किया उसके ऊपर। हाँ, तो एक काम करो, बेस्ट चीज कि आप उन प्रोफेसर्स का रिसर्च वर्क थोड़ा सा देखो कि उन्होंने क्या किया है, और उनके रिसेंट पेपर नहीं देखने हैं ओनली, उनके पुराने पेपर भी देखने हैं। गूगल आउट, उन्होंने पहले भी काम किया होगा। लेट्स से जो उन्होंने 10-15 साल पहले काम किया होगा वो आपके लिए अभी भी रेलिवेंट हो। जो रिसेंट वर्क कर रहे होंगे वो शायद बहुत हाई एंड पे काम कर रहे होंगे, लेकिन जो 10-15 साल पहले काम किया होगा शायद वो डायरेक्शन आपको दे देगा कि आप किस डायरेक्शन में स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर मुझे अपना पूरा मॉडल डेवलप करना होगा कि मैं फिजिक्स का जो पूरा यूज है मैं क्या डिवाइस बनाऊंगा, क्या करूंगा तो उसमें। देखो होता क्या है कि जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं रूरल टेक्नोलॉजी में, मैं रूरल फील्ड में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि रूरल मशीन्स में डेवलप कर सकता हूँ। I can develop some kind of machines which will be used in rural area in harvesting season or something, cropping season, and that will increase the productivity of rural people. तो उनको बिल्कुल बात समझ आ जाएगी। एज अ कंप्यूटर इंजीनियर मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं एक ऐप डेवलप करूंगा जिससे उन लोगों को पता लग जाए कि वेदर कंडीशन क्या होने वाली है, तो उनको बिल्कुल समझ आ जाएगा। एज अ केमिकल इंजीनियर मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं उनको फर्टिलाइजर में कुछ काम करना चाहता हूँ उस फील्ड में, जिससे ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट किया जा सके। एज अ केमिकल इंजीनियर मैं ये बोलूंगा। सिमिलरली सिविल इंजीनियर ये बोलेगा। सिमिलरली मैथमेटिक्स वाला जो है वो कुछ और डायरेक्शन में चला जाएगा, वो कुछ और बना लेगा, मशीन लर्निंग वगैरह कर लेगा। एज अ फिजिक्स आप रूरल टेक्नोलॉजी, रूरल लोगों के क्या कर सकते हो, और उसमें फिजिक्स रिफ्लेक्ट होना चाहिए। Don't try to become mechanical engineer, don't try to become computer engineer, try to be only physicist. As a physics guy, this is what I can do. And for that only I'm telling you that that professor, when he must have started in this department of Sarkar Bombay, he must have used passion and reason why he started it. उसका प्रोफाइल आपके लिए बहुत रेलिवेंट होगा। Honestly speaking, even I'm not knowing as a physics guy what he will do. That professor का background really relevant. तो सर मुझे वही मुझे मैं उस पर स्टडी कर भी रहा था कि मैं एग्जैक्टली क्या बताऊंगा उनको, कि जैसे फिजिक्स का मैं कुछ ये पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मेरे पास टेक्नोलॉजी की नॉलेज है या कंप्यूटेशन नॉलेज है, तो क्या मैं अपने आप से कुछ प्रोजेक्ट डेवलप करूँ उसके अंदर कि मैं इस प्रोजेक्ट पर वर्क करूंगा, यहाँ यूज करूंगा? नहीं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी सर ने पूछा तो तुम बहुत ज्यादा सोशल वाले आंसर दे रहे थे कि ना कि मुझे इस पे इसलिए काम करना है क्योंकि मुझे हेल्प करनी है, लेकिन कैसे हेल्प कर सकते हो ये आंसर नहीं था। जैसे उसमें तुम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बता सकते हो, सोलर सेल के बारे में बता सकते हो, या तुमने कोई इलेक्टिव किया हो जिसमें जैसे कि ऑप्टिक्स इलेक्टिव होता है, या कोई लेजर टेक्नोलॉजी, कोई भी इलेक्टिव होता है, जो थिन वैक्यूम टेक्नोलॉजी भी इलेक्टिव होता है मास्टर्स में। तो कुछ ऐसा किया है जिसमें प्रॉपर बताते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल सोलर सेल कैसे बनता है, ये सब चीज अगर तुमने कर रखी है ये बता दो, वरना कुछ कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड तुम बता सकते हो, तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बता दो। मेरा ये फील्ड स्ट्रॉन्ग है और फिजिक्स में मैंने ये सब्जेक्ट काफी पढ़ा है। तो आपको पता है कि फिजिक्स में थ्योरेटिकल ही होती है, मैथमेटिक्स हो गया, कंप्यूटेशन हो गया, तो थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। EMT हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यूज हो सकता है, और वेव ऑप्टिक्स भी यूज हो सकता है कुछ कुछ चीजों में, ये भी यूज हो सकता है। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स तो ऑब्वियसली यूज होता ही है। तो आगे जाके अगर तुमने मास्टर्स में, जैसे हम लोगों के कोर्स था कंडेंस मैटर फिजिक्स में भी, आगे जाके थिन फिल्म डेपोजिशन, तो उसमें प्रॉपर बताते थे कि सोलर सेल कैसे बनता है। तो अगर ऐसा कुछ किया हुआ है तुमने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में तो मेंशन कर सकते हो, ऐसा कुछ मेंशन कर देना। ऑप्शन में तो मैंने बेसिकली जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट्स लिखे हैं, OTP और ये बूटस्ट्रैप या सिमुलेशंस, या ये हो सकता है कि मैंने एक सिमुलेशन किया था अपना एडवांस न्यूमेरिकल टेक्निक में। जैसे मैं प्रोफेसर के साथ पेपर्स पढ़ रहा था तो वो लिख रहे थे कि जो रेन की हार्वेस्टिंग होती है तो उसमें सिमुलेशन टेक्निक का यूज होता है, तो उसको मैं थोड़ा रिलेट कर सकता हूँ। आप मोहित, जैसे अभी ज्योति ने बताया ना सोलर सेल्स का, तो आई वाज जस्ट गूगलिंग, आई वाज जस्ट डूइंग गूगल आउट दिस टर्म सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चर, राइट? सो उसमें बहुत कंटेंट आता है, बहुत सा मटेरियल आता है। सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड, यू नो, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें आप कैसे उसको यूज कर सकते हो, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं आप, एंड हाउ यू कैन मेक द बिल्डिंग एज अ ग्रीन बिल्डिंग,
तो वो आप एज अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, यू डील विद पंप्स, यू डील विद इलेक्ट्रिसिटी, यू डील विद इलेक्ट्रॉनिक्स, यू डील विद सेंसर्स, ये सारा तो कॉमन होता है ना, ओवरलैपिंग होता है। Yes, sir. तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन भी मेरे ख्याल से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स का एक ओवरलैपिंग फील्ड होता है। तो Yes, sir. आपको गूगल आउट करना पड़ेगा कि एज अ फिजिक्स वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। और अगर तुम इसको ही गूगल आउट करोगे, सर्च करोगे, तो वर्ल्ड ओवर बहुत से फिजिस्ट ऐसे होंगे जिन्होंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए काम किया होगा। आई एम वेरी श्योर। आप गूगल आउट करो हाउ आई कैन एज अ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये डालोगे ना आप, तो आपको आइडियाज हो जाएंगे। Okay, sir. आपने आपको वहां पे बतानी है कि कैसे, क्यों करना चाहते हो आपको। बिकॉज अगर उनको रीजन पता नहीं चलेगा आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपको नहीं लेंगे। Yes, sir. यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस डिपार्टमेंट। जैसे मैंने बताया था कि अभी थोड़ा सा कि जैसे एक तो मैं ओवरव्यू दूं कि मैं 16 साल में वर्क करूंगा, लेकिन कैसे वर्क करना है वो भी बताना पड़ेगा उनको कि मैं कहाँ कंट्रीब्यूट मैं वही तो करना बोल रहा है। हूँ कि आप थोड़ा सा सर्च करो गूगल के ऊपर, आप देखो कि लोगों ने क्या काम किया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग व्हेन आई डोंट नो, लेकिन लोगों ने बहुत काम इस पे किया होगा, रिसर्च पेपर भी होंगे इस पे लोगों के। Yes, sir. और जो प्रोफेसर आप बता रहे हैं उन्होंने भी बहुत रिसर्च किया होगा। 12 साल 15 साल पीछे चले जाओ, when he must be doing his PhD, when he must have started his career in Satara, he must have started from very basic things actually. आप उनको देखो, और ऐसे बहुत से फिजिस्ट होंगे जो काम कर रहे होंगे एग्रीकल्चर डोमेन में, Yes, sir. तो उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आई एम वेरी श्योर इन दैट, Okay, sir. राइट। उसको आपको ढूंढना पड़ेगा मोहित, यू नीड टू फाइंड इट आउट, राइट। Okay, sir. लेकिन अभी आपके इससे लग नहीं रहा कि आप क्या करना चाहते हो, यू आर नॉट क्लियर एट ऑल। वो आप अपने आप से पूछोगे तब आपको भी मुझे क्लैरिटी इसका नहीं। आइडिया नहीं था कि इतना मुझे डिटेल में बताना होगा कि मुझे क्या प्रोजेक्ट करना है क्या नहीं। आई थॉट कि ये तो डिपार्टमेंट में जाने के बाद पता चलेगा कि मैं किस पे वर्क करना चाहता नहीं, हूँ। पर पहला वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे भाई आना क्यों चाहते हो, वो आपको इसी के बेस पे लेंगे कि आना क्यों चाहते हो। क्योंकि वो ये आपका इंटरव्यू ही इसलिए ले रहे हैं कि हमें राइट कैंडिडेट चाहिए। अब सोचो ना, वो किसी भी कैंडिडेट को नहीं लेंगे जिसको ये नहीं पता कि क्यों आना चाहता है। Yes, sir. कैंडिडेट को क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं इस डिपार्टमेंट में आना चाहता हूँ बिकॉज दिस इज द रीजन। आप इंटेंशनली आना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि बॉम्बे का एक डिपार्टमेंट ज्वाइन हो जाएगा तो ठीक है। आपको रीजन पता होना चाहिए ना, आप क्यों आना चाहते हैं मोहित। एंड सर एक और क्वेश्चन है कि सर मैंने ये डिपार्टमेंट फोर्थ प्रेफरेंस पे रखा है, तो सर उसमें कोई क्वेश्चन हो सकता है कि आपने हाँ बिल्कुल हो फोर्थ सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पहले 3 पे क्या है? सर वो IEOR है और GNR है एंड सर एक फिजिक्स का है, फोटोनिक्स डिपार्टमेंट। तो फोटोनिक्स है। आप ये बोलना कि सर मैं इन सब डिपार्टमेंट्स में वर्क करना चाहता था प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के लिए। IEOR में आई वाज फोकसिंग ऑन वर्किंग इन द फील्ड व्हिच विल लीड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडस्ट्री। IEOR में ऐसा काम करोगे जिससे इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़े। एग्रीकल्चर सटारा में इसलिए काम करोगे कि उससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो आई वांट टू बिकम एक्चुअली द एसेट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन इन व्हिच आई वर्क एंड कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली। साइंस एंड इंजीनियरिंग का अल्टीमेट पर्पस है सोसाइटी को कुछ देना, वापस करना थ्रू आवर नॉलेज, whether that knowledge is helping industry or that is helping people at large। इंटेंशन वही होता है किसी भी डोमेन का। तो आप अपनी फिजिक्स का नॉलेज यूज करना चाहते हैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, चाहे इंडस्ट्री हो जाए चाहे वो आपका एग्रीकल्चर डोमेन हो जाए। इस तरीके से आप बोलेंगे। Yes, sir. डन? Yes, sir.